Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, my name is Maya Eka. Today I'll be explaining one of the art therapy processes that we've done. It's called Rebirth, where we use the medium of clay. You can use it with other materials, but we've chosen to use clay. It's divided into two sessions because the intervention requires the clay to dry before we move on to the process. So we first make bowls out of clay, where it's a form of container, and then we allow it to dry and they share their experience. Then when we come back, we again break the clay that's been made, the bowl that's been made, and out of the broken pieces we take new clay again and we make something new. The concept is that in life, whatever we build, or whatever, whether be it relationships or processes or in our professional life, things do get taken away or destroyed without us realizing it, or sometimes we have to break them, but we have to move through life and move on and rebuild again. So it's a rebirth of something, where we might take something from the past, whether be it the broken pieces, and build the new process, or not much has been broken but we improve on what was already there, or we make something completely new and leave what was in the past behind. So that's the concept of this process. The materials that are required are clay. I use natural clay. You can also use fast drying clay, but the only problem with fast drying clay is that I don't know if it can be reused or like you can rejoin the parts, and you also need things where you can decorate it, whether be it paint or objects that you can stick, but we've only used paint and natural clay. जिसको बोल बनाते हैं, हाँ बोल बोलते हैं ना, कटोरी बड़ा सा जैसे एक बर्तन टाइप, हाँ लड्डू जैसे बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ अच्छा बन गया इनका। आप दीदी बोल रही हैं कि आपकी अब मिट्टी तैयार हो गई, गोल बन गया। हाँ थोड़ा सा और अच्छे से बनाइए, अच्छे से शेप दीजिए। बेसिक शेप बन गया, इसको थोड़ा सा और अच्छा सुधार लीजिए, सुंदर बना लीजिए, वैसा भी हो सकता है। हाँ अच्छा बन गया। हाँ मैम इसका मैं शुरू से बना सकती हूँ। हाँ ऐसे गोला बना लो, फिर से गोला बना के बना लो। And then after that you straighten it. सब आइडिया सोचो कि कैसे उसको सुंदर बना सकते हैं, ठीक है? मैं एक काम करती हूँ, इसका मैं बना सकती हूँ। ढक्कन बनाओ। कुछ और बना लो, उसको क्या है, जरूरी कहीं ना कि वही बना लो। ऊपर से डेकोरेशन करो, जैसे जैसे मोती लगाया है, या ऐसे लंबा लंबा बना के उसके आसपास लगा दो, है ना, थोड़ा डेकोरेट करो। हाँ पेंसिल वगैरह है ना, तो उसकी नोक से बना सकते हो आप। कुछ और भी बना लो। क्या छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं? With this clay itself they have to join it. किस किस को सबके लिए आ जाएगा एक एक? Very good. Very nice. क्या क्या उसमें अलग अलग मिठाइयाँ हैं ना?
Good afternoon, everyone. How was your week? आपका हफ्ता कैसे बीता? अच्छा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, बहुत सारी आपके साथ एक्टिविटीज़ भी की हैं, तो आपको कैसा लग रहा है दीदी अब जाएंगी आज लास्ट है? बहुत बुरा लगा। दे आर फीलिंग बैड दैट यू आर गोइंग एंड इट्स देयर लास्ट डे विद यू। Okay. Tell them, but aren't they happy that we met at least? ओके दीदी ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ से खुश हो जाओ कि कम से कम आप इनसे मिले, ये आपसे मिली, एक मौका हुआ और कुछ समय आपके साथ बिताया, गतिविधियाँ की, ऑनलाइन भी किया, है ना? इस तरह से भी मिलके भी किया और ऑनलाइन भी किया जब दीदी घर गई हुई थी, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, लोग आते हैं, कुछ दिन मिलते हैं, अच्छा समय बिताते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हम उनको याद रखते हैं, है ना? तो हम उनको अच्छे से याद रखेंगे ना दीदी को बाद में भी। ओके, दे विल रिमेंबर यू। Tell them that I've learned so much from them and it was such an amazing experience to be with them. दीदी कह रहे कि आप लोगों के साथ जो इन्होंने समय बिताया उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी, आपने भी सीखी होंगी उनसे, है ना? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा आपके साथ। दीदी कह रही है आप सबको थैंक यू। To tell them that last week we made bowls from clay. So this week, for those who are okay with it, you don't have to force it. We will break the bowl. ओके, completely or some little Like, end or something, right? We'll see which parts we can break. ओके, राइट। कि पिछली बारी हम लोगों ने अच्छे से क्ले का इस्तेमाल करके अपने बोल बनाने को बोला था, आपने अलग अलग तरीके, सबके देखो बोल्स अलग हैं। आज जो लोग सहमत है, यानी जिनकी मर्जी है, दीदी फोर्स नहीं कर रही, जिनकी मर्जी है वो अपने बोल को थोड़ा सा तोड़ेंगे। कईयों को हो सकता है कि मैं बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती, ठीक है, तो वो लोग देखें दूसरे को। Tell her that if she wants to break it that way, she can break it. सारा तोड़ दिया वो वाला। ओके शी इज एबल टू ब्रेक इट। और कौन तोड़ना चाह रहा है? और आपका एक चम्मच भी टूट गया ना? We can all break it together. हाँ, चूल्हा भी टूट। Tell everyone. दीदी ये कह रही है कि सब मिल के तोड़ेंगे ताकि किसी को अलग अलग से दुख ना हो, ठीक है? जिसको तोड़ना है अपनी मर्जी से, जिसको नहीं तोड़ना मत तोड़ो, ठीक है? सिर्फ देखो, तो सब मिल के तोड़ेंगे। ओके। ओके नाउ 1 मिनट हो गया ना, सबका जबरदस्ती मत करो, जितना हो रहा है बस। हाँ, नेक्स्ट। No, if they want to break some more, tell them they can break some more. How much they want to break, let them break it. पूरा ही टूट गया, ऐसा तो शेप ही खराब हो गया। ओके। इससे ज़्यादा अगर तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो उतना ही रहने दो, जितना तोड़ दिया। बस ओके, टूटी नहीं रहा। कोई बात नहीं टूट रहा तो जबरदस्ती मत करो, वो ज़्यादा हार्ड हो। The reason why we broke it is because in life, sometimes whenever we build something and we make something of it, or if something good happens also, sometimes we have to either let it go, or sometimes something happens to it that we have to destroy it altogether. So whatever achievements we get also, sometimes it has to be broken down. रिश्ते भी बनाते हैं हम लोग, है ना? दोस्तियाँ बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको तोड़ना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है किसी भी वजह से। जैसे कि अगर हमारा रिश्ता बना हुआ, हमारे लड़ाई हुई तो रिश्ता तोड़ना। आपने जैसे बोला कि हम गलत संगत में बैठ चले गए थे, या दोस्त हमारे ऐसे थे जिन्होंने हमारे ऊपर गलत प्रभाव डाला। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमें समझ आ गया है, तो वापस जाएंगे तो उनके साथ नहीं मिलेंगे, आप वो रिश्ता तोड़ देंगे। दीदी ये भी बोल रही हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई हम अच्छी चीज़ भी बनाते हैं लेकिन किसी वजह से वो छूट जाते हैं या टूट जाते हैं, या हमें छोड़ना भी पड़ता है। ये इससे रिश्ता लग के भले से वो अच्छा है, पर मैं अपनी फैमिली के लिए उसे छोड़ दूँगी। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोला आपने। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उस जगह से उठ के कहीं और चले जाएं, तो जो अच्छे रिश्ते हैं वो भी छूट जाते हैं।
For the ones who've broken a lot, or for the ones who've even broken a little, for those who still have their form, they can use the clay to build on it further. For those who have broken completely, what you can do is you can use the pieces to build something new. जिनका बहुत ज़्यादा टूट गया, जैसे मेरा भी टूट गया, इनका भी टूट गया, है ना, तो इससे कुछ नया बना लो, नया बना लो। और जिनका थोड़ा सा टूटा है उसको जोड़ने के लिए यहाँ से ले लो और वही चीज़ को जोड़ के ठीक कर लो। दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। जिनका पूरा टूट गया है वो कोई नया चीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। और जिनका पुराना, जिनका ज़्यादा टूटा नहीं है, अच्छा यू नया बनाना चाहते हो, जो वाला पीस है ना उसको तोड़ के आप बना लो, अगर आपको नया बनाना। आप अपना बनाओ। सुनो, अगर आपको इसी को बनाना है अच्छे से और बना लो, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं। वो कह रही है कि इसी को आप जो जो पीस जुड़ सकता है जैसे भी, उसी को जोड़ो पानी लेकर के और Join it with the new clay. और नया थोड़ा सा लेकर के उसके साथ बना दो। थोड़ा पानी लेंगे और थोड़ा नया लेंगे ना, क्ले तो जुड़ जाएगा। तो कुछ तो एक दो यूज़ करो ना, मैं भी एक दो यूज़ करके नया भी यूज़ कर रही हूँ ना। इसमें से अगर कुछ जुड़ सकता है और कुछ बन सकता है। किसी का हाथ सफा No, like just take few pieces of it and build something new. It doesn't mean that they have to. They don't have to use all the pieces. नया है, नया और पुराना है कि पुराना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। What happened, ma'am? इससे नहीं, थोड़ा बहुत पुराना भी यूज़ करो। देखो सब लोग थोड़ा थोड़ा पुराना यूज़ करो कुछ। ओके, सींग कहाँ से निकल रही है उसकी? All these broken pieces, no, can be used again. Tell her that you have to blend it in when it does not break. ये पुराने से है, नए से बना है? रेड यूज़ किया था पिछली बारी? इसीलिए कोई चीज़ बिना सूखे आप पेंट करोगे तो ज़्यादा गीली हो जाएगी।